موضوعی امتحان بمقابلہ مروزی امتحان۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ اگر امتحان لینے کے لیے ایسا طریقہ منتخب کیا جائے جس میں زبان کا استعمال کیا گیا ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اسے موضوعی ہونا چاہیے یا مروزی؟ آئیے ہم دونوں طریقوں ہے امتحان کی خوبیوں اور خامیوں کا موازنہ مختصر لحاظ سے کرتے ہیں۔ نمبرات یا گریڈ کی معتبری۔ عام طور پر مروزی امتحان کو موضوعی امتحان کے مقابلے میں زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مروزی امتحان پر خواہ کتنے ہی مختلف مواقع پر نمبر دیے جائے، ہر دفعہ ایک ہی طرح کے نمبر ہوں گے، چاہے اس پر ایک ہی مہر مضمون نمبر دے یا کوئی دوسرا نمبر دے۔ دوسری طرف موضوعی امتحان میں مختلف افراد یا ایک ہی فرد مختلف اوقات میں نمبر دے تو نمبرات میں کافی فرق ہوگا۔ اس کا تجربہ مختلف مواقع پر کیا گیا ہے۔ حصول کے نمونہ کی وسعت۔ مروزی امتحان میں مدات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کی مدد سے طلباء کے حصول کی جانچ بڑے پیمانے کی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس موضوعی امتحان میں سوالات کی تعداد کم ہوتی ہے، اس لیے پورے نصاب کے چند حصوں کے حصول کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ نتیجے کے طور پر مروزی امتحان میں طلباء کو پہلے سے یہ قیاس کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کس موضوع پر سوال آ سکتا ہے اور کس پر نہیں آ سکتا، جس کا اثر حاصل کردہ نمبرات پر نہیں ہوتا، جبکہ موضوع میں یہ امکان رہتا ہے اور نمبرات اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ مزید برآں مروزی امتحان میں طلباء کو پورے نصاب پر توجہ دینی پڑتی ہے، جبکہ موضوعی امتحان میں نصاب کے اہم حصوں پر توجہ دی ہے۔ قیاس آرائی یا دھوکہ دہی کے امکانات کے لحاظ سے یہ الزام اکثر لگایا جاتا ہے کہ کثیر انتخابی امتحانات میں جو محدود تعداد میں ممکنہ جواب دیے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے طلباء اپنی اہلیت سے زیادہ نمبرات حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسا اس امتحان میں ہوتا ہے جس میں سومدات ہوں اور ہر ایک کے 2 ممکنہ جوابات ہوں۔ طلباء اوسطاً 50 سوالات کے جوابات صحیح دیتے ہیں، اور ایسا اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ قیاس آرائی سے کام لے کر ایک پر صحیح اور دوسرے پر غلط کا نشان لگاتے ہیں۔ اس موقعاتی عامل کو درست کرنے کے لیے بہت سے شماریاتی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس سے قیاس آرائی کا امکان مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے۔ اگر موضوعی امتحان کو اچھی طرح مرتب نہ کیا گیا ہو تو اس پر توجہ سے نمبرات نہ دیے گئے ہوں گے تو اس میں بھی اسی طرح کی خامی ہو سکتی ہے۔ وہ طالب علم جو کسی مضمون کے متعلق و مشکل کو جانتا ہو، اپنی رفتار، تحریر، ادبی سلوک اور اظہار بیان کی عمدگی کے باعث اکثر اچھے نمبرات اور گریڈ لے سکتا ہے۔ امتحان کی تیاری کے لحاظ سے جب طلباء کو یہ معلوم ہو کہ انہیں موضوعی امتحان دینا ہوگا یا مروزی تو دونوں طریقے کے امتحان کے لیے ان کی تیاری کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ مختلف ماہرین نے اس سلسلے میں تجربات کیے ہیں اور دونوں طرح کی تیاری کے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب طلباء کو یہ معلوم ہو کہ انہیں موضوعی امتحان دیتا ہے
देना, तो उसकी तैयारी ज़्यादा बेहतर होगी। आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। व्यूअर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शख्सियत की जांच के तरीके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। सबसे पहला तरीका है इतलाफ़ अल्फाज, दूसरा है मुशाहिदा किरदार, तीसरा है शराबंदी के पैमाने, चौथा है ख़ुद इतला देना। इतलाफ़ अल्फाज शख्सियत की जांच के तरीके। इस तरीके की एक शक्ल आज़ादाना इतलाफ़ भी है। ये फ़र्द की किरदार की फरमाइश करने वाले इब्तदाई पैमानों में से एक है। से पहली मरतबा मिस्टर गाल्टन ने 1879 में बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया। 1910 में जदीद अंदाज पर तरक्की दी गई। फिर इस तरीक़ा को मिस्टर विंडथन और मिस्टर कैटल ने नफ्सियाती लेबॉरेटरी में बहुत कामों में इस्तेमाल किया। इस इम्तिहान में जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत सी सादा और आसान है। इसमें गैर मरबूत अल्फाज का सिलसिला पेश किया जाता है। मामूल से कहा जाता है कि हर लफ्ज़ सुनने के बाद जो पहला लफ्ज़ उसके ज़हन में आए वो उसे पेश करे। तजर्बाती नफ्सियात के माहिरीन और मुम्तहनीन का ख़्याल है कि अल्फाज का इस तरह का इतलाफ़ के एक ऐसे आले की हैसियत रखता है जिस फ़र्द के सोचने के अमल का पता चलता है और ये मालूम होता है कि इसकी शख्सियत किस तरह माइल है। आजकल शख्सियत के मुतालिया के लिए इतलाफ़ का तरीका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इनमें दो तरीके बहुत मशहूर हैं। ज़बानी इतलाफ़ का तरीका, बसरी मैज का तरीका। आजकल इन दोनों तरीक़ों को बुरअंदाज़ी तरीके कहते हैं। फ़र्द जब कोई लफ्ज़ सुनकर अपने जहन में पहली मरतबा आने वाले लफ्ज़ को बयान करता है तो उसे ज़बानी इतलाफ़ कहते हैं। नामुमकिन नामैमल जुमलों और जुज़वी तौर पर कही हुई कहानी को मुकम्मल करना भी इसी ज़मरे में आता है। बसरी महज के मशहूर तरीक़ों में स्याही के धब्बे और तस्वीर को देखकर आज़ादाना तौर पर इज़हार ख़याल करना शामिल है। ऐसी सूरत में मामूल से पूछा जाता है कि वो स्याही के धब्बों या तस्वीर को देखकर क्या समझता है। उनके बारे में उनका ख़्याल है कि वो जिस शख्स से जवाब देता है और जवाब की जो नवैयत होती है वो दोनों मुतवज्जो के साथ नोट किया जाता है और फिर उन्हीं की बुनियाद पर फ़र्द की शख्सियत और उसकी जज्बातियत कैफियत का अंदाज़ा किया जाता है। इतलाफ़ अल्फाज में जुमलों को मुकम्मल करना भी शामिल है। उनकी मदद मामूल की ज़बानी रग़बत का पता चलता है। इसमें आम तौर पर जुमला के सिर्फ़ शुरू के अल्फाज दिए जाते हैं और मामूल से कहा जाता है कि वो जुमला जो आखिर तक मुकम्मल करे। उसकी चंद मिसालें दाई ज़ैन में पेश की जाती हैं। मैं महसूस करता हूँ कि दूसरा है, मुझे इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है कि मेरा दिमाग खाली जगह। अगर मुझे मौका मिले तो आगे है औरतें खाली जगह। जुमले के ये शुरू के अल्फाज इस तरह मुरतब किए जाते हैं कि उनकी मदद से मामूल की शख्सियत के मतलूबा पहलू की जांच की जा सके। इससे तिब्बी और तहकीकी मकासद में बड़ी मदद मिलती है। उसकी एक मिसाल राउटर इनकम्प्लीट
सेंटेंसेस बैंक इसमें 40 जुमलों के इब्तदाई अल्फाज दिए गए हैं। इनमें शरकाए इम्तिहान को इस तरह हिदायत दी गई। आज तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो व्यूअर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुरा हवाई की तयदार साख्त। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। दर्जा हरारत के लिहाज से कुरा हवाई को दर्जा अल्ता होना पसंद किया गया है। ट्रोपोस्फीयर, ज़मीन के करीब मौजूद कुरा हवाई की तह ट्रोपोस्फीयर कहलाती है। ये ज़मीन पर मौजूद तमाम ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। उसकी वजह से ज़मीन पर इस हर तरह की सरगर्मियाँ जारी हैं। इसकी वजह से ज़मीन पर हर तरह की सरगर्मियाँ जारी हैं। इनमें तमाम मौसमी कैफियत रुनुमा होते हैं, जिसमें बादल, बारिश, हवाएँ, हरारत वगैरह कुरा अर्ज़ को एक मुतवाज़िन माहौल मुहैया करते हैं। कुरा हवा में मौजूद गैसें, आबी बुखारात और खाकी ज़रात ज़्यादातर इसी तह में मौजूद हैं। इस तह के बुलंद तरीन हिस्से में दर्जा हरारत -60 सेंटीग्रेड के करीब होता है। इस तह में दर्जा हरारत बुलंदी की जानिब कम हो जाता है। ये ज़मीन के ऊपर तकरीबन 16 किलोमीटर तक वाक़या है। स्ट्रेटोस्फीयर, कुरा हवाई की ये तह ट्रोपोस्फीयर के ऊपर वाक़या है। इसमें दर्जा हरारत बुलंदी की जानिब कम होने की बजाय ज़्यादा होता है और उसकी आखिरी हद में दर्जा हरारत करीबन 0 दर्जा हरारत सेंटीग्रेड के करीब पहुंच जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर तह में ओज़ोन गैस बड़ी मिक़दार में मौजूद है, जो सूरज से आने वाली शुआओं को माहौल के लिए साज़गार बनाती है। कुरा हवाई की ये तह ट्रोपोस्फीयर के ऊपर करीबन 16 किलोमीटर शुरू होकर 50 किलोमीटर तक वाक़या है। मीज़ोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर तह के ऊपर वाक़या है। इस हिस्से में दर्जा हरारत बुलंदी की जानिब दोबारा कम होना शुरू हो जाता है। मीज़ोस्फीयर की आखिरी हद पर हवा का दर्जा हरारत करीबन -100 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यहाँ हवा में मौजूद गैसें और दूसरे ज़रात बहुत कम मिक़दार में पाए जाते हैं। ये तय कुरा हवाई में 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के दरमियान वाक़या है। थर्मोस्फीयर तय 80 किलोमीटर से लेकर कुरा हवा की आखिरी हद तक फैली हुई है। कुरा हवा के इस हिस्से में दर्जा हरारत बुलंदी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। 350 किलोमीटर की बुलंदी पर दर्जा हरारत करीबन 100 सेंटीग्रेड का रिकॉर्ड किया गया है। मौसम और आबो हवा में फ़र्क। मौसम से मुराद किसी मकाम के ख़ास वक्त के दर्जा हरारत, हवा के दबाव, हवा की रफ्तार, हवा की रतूबत और रेज़िश, बारिश और बर्फ़बारी की मजमूई फ़ज़ाई कैफियत है। मौसम वक्त के साथ तब्दील होता है, जबकि आबो हवा किसी जगह की एक तवील अरसे की औसत मजमूई मौसमी कैफियत को कहते हैं। मौसम और आबो हवा में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मौसम किसी मकाम के ख़ास वक्त की फ़ज़ाई कैफियत का नाम है, जबकि आबो हवा इस मकाम की एक तवील अरसे के दौरान अमूमी मौसमी कैफियत का नाम है। सतह ज़मीन पर आबो हवा में तब्दीली। इंसानी सरगर्मियों की वजह से कुरा अर्ज़ की आबो हवा तब्दील हो रही है। इंसान अपनी ज़रूरत के लिए सड़कें, इमारतें और डैम वगैरह बनाता है। आबो हवा में तब्दीली के मुमकिन ख़तरात पर 2009 में डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपनहेगन में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिस पर दुनिया के बहुत से मालिक ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी के हवाले से अहम फैसले किए गए, ताकि ज़मीन पर दर्जा हरारत के बढ़ते हुए रुझान को रोका जा सके। कुरा अर्ज़ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक ख़ास हद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार में तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है। ज़राए तवानाई मसलन कोयला, तेल, कुदरती गैस वगैरह के इस्तेमाल से निकलने वाला धुआँ कुरा हवाई में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी मौलिक गैसों की मिक़दार में इजाफ़ा कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें ज़मीन से ख़ारिज होने वाली हरारत को जज़ब कर लेती हैं।
جس سے کرۂ ہوائی کا درجہ بڑھ جاتا ہے جو زمین پر زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس طرح دنیا کی آب و ہوا متاثر ہو رہی ہے اور اس میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔